DNA replication. So what is this DNA replication? It is a process by which a double-stranded DNA molecule is copied to produce two identical DNA molecules. For example, this is a DNA molecule and it has to copy into two identical sets. Exact replica of the same parent DNA into two daughter DNA is called DNA replication. So why this replication has to happen? Because DNA replication is an essential process. Whenever a cell divides, the two new daughter cell must contain the same genetic material. For that process or for that reason, DNA replication is important. For example, this is a parent organism and it has a genetic material DNA in their cell, and if this cell is divided into two daughter cell, the genetic material in it must be same as the parent genetic material in these daughter cells. So for this reason, the DNA need to replicate and make exact two identical copies. So before going into the further process of DNA replication, because DNA replication has a number of steps and number of processes and it needs different enzymes to carry out this DNA replication. So let us see where this replication happens. So broadly we divide this into two group of organisms. One is prokaryotes and the second one is eukaryotes. So in prokaryotes, the DNA is chromosome and another one is plasmid. Chromosome and plasmids. And the chromosome in prokaryote are mostly circular and the replication process is called theta replication. And in eukaryotes, it divided into two group. One is nuclear and second one is extranuclear. So the DNA present in nucleus is called nuclear DNA, and which are present in outside of the nucleus is called extranuclear. For example, in nucleus there is one is the main chromosome, which is a genetic material of every organism, and another one is plasmid in eukaryotes. But surprisingly, the plasmid in eukaryote are rare and it found in some budding yeast like Saccharomyces cerevisiae, and the extranuclear chromosome or extranuclear DNA is present in mostly mitochondria and chloroplast. So the chromosome is generally linear form in eukaryotes, and the plasmids are rarely present, and the plasmid are actually circular, and the replication process is called theta replication in it. So the extranuclear chromosomes, we talk about this mitochondria and chloroplast, the replication process is called displacement replication or de-replication. Okay, so you got it till here. So let's talk about the DNA of DNA replication in prokaryotes, the chromosomal replication in prokaryotes. Okay, so for example, in prokaryotes, we take an example of E. coli. So E. coli is actually a gram-negative bacteria, and it is motile and it is eubacteria. Okay, so the bacteria are actually in two forms. One is archaebacteria and second one is eubacteria. Eubacteria are generally called as the true bacteria. So the generation time of this E. coli is approximately, generation time is 20 minutes at 37 degrees Celsius. So the generation time means how much time it takes to get it double. Okay, तो ये जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड होकर डबल होने में कितना टाइम लगता है, वो ये जनरेशन टाइम है. इट इज नॉट द रेप्लिकेशन टाइम. लेट्स टॉक अबाउट द डीएनए इन
ई कोलाई। तो ये क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्रोमोसोम ओनली। एंड प्लास्मिड की भी अगर हम बात करें तो जनरली इसका क्रोमोसोम होता है, द क्रोमोसोम इसका सिर्फ 1 होता है, 1 इन नंबर, and it is circular in nature. Okay, so the size of this chromosome is approximately 4.6 into 10 to power 6 base pair होते हैं. Okay, and it contain approximately 4000 coding genes, coding or mRNA forming genes. So what does this coding gene means? It means कि कितना प्रोटीन बनते हैं। जैसे हमारे बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्रोमोसोम होता है, इंटायर क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं वो इंटायरली वो एक हर कोई जीन प्रोटीन नहीं बनाते। कुछ जीन स्यूडो जीन्स होते हैं, कुछ mRNA फॉर्मिंग जीन्स नहीं होते। जो जो mRNA फॉर्मिंग जीन्स होते हैं वो जाके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस से क्या बनाते हैं, फिर प्रोटीन बनाते हैं। ओके, सो द साइज ऑफ द क्रोमोसोम इज अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिलीमीटर है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, द टाइम टेकन फॉर replication which is 42 minutes approximately. So replication होने के लिए जो ई कोलाई है प्रोकैरियोट्स में 42 मिनट्स लगते हैं, पर सेल जो डिवाइड होते हैं वो डिवाइड होने में इसका जो जनरेशन टाइम है वो सिर्फ क्या है, 20 मिनट्स है। ओके, सो जो रिप्लिकेशन का प्रोसेस होता है ई कोलाई में, उसको हम क्या कहते हैं, जो सर्कुलर था हमने पहले बोला प्रोकैरियोट्स में, उसको कहते हैं थीटा रेप्लिकेशन। ओके, और जो नेचर है इसका जो रेप्लिकेशन होने का, द नेचर ऑफ दिस रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन एंड इट इज बाई डायरेक्शनल। मैं आपको ये सब एक्सप्लेन कर लूँगा। ओके, और एक है सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस भी कहते हैं इसको। ओके, सो व्हाट इज दिस सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन? तो एक एक्सपेरिमेंट किया था मेलेंसन एंड स्टेनले ने, ठीक है। तो उन्होंने पता किया था कि ये जो स्ट्रेन होते हैं हमारे डीएनए का वो कंजर्वेटिव है या सेमी कंजर्वेटिव है। अगर ये डीएनए है हमारे पास पेरेंटल डीएनए, अगर इस डीएनए को हम रेप्लिकेशन करना है, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था 2 आइसोटोप यूज करके, वन इज N14 और दूसरा जो नॉर्मल था N15, ठीक है। तो अगर ये कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता तो जो कॉपी बनता उसका सेम एग्जैक्टली यही स्ट्रेन ही बनता, लेकिन ये सेमी कंजर्वेटिव था, एक स्ट्रेन सेम रहता था लाइक दिस, और जो दूसरा स्ट्रेन था वो नया बनता था, ठीक है, ऐसे। ओके, सो फॉर दिस अगर ऐसे प्रोसेस होता तो इनमें दोनों में सेम स्ट्रेन है ब्लू कलर के, और यहाँ पे हमने रेड कलर इसलिए लगा, ये जो है न्यू स्ट्रेन है, ये ओल्ड वाला ही है जो पेरेंटल स्ट्रेन। तो एक स्ट्रेन जो है पेरेंट्स के ही रहते हैं, जो दूसरा स्ट्रेन होता है वो नॉर्मली वो न्यू बन जाते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके पता किया था, फिर जब जेल पे उन्होंने ये रन किया था डीएनए रेप्लिकेशन करने के बाद, उन्हें क्या मिला था, 2 बैंड्स मिला था, एक N14 का मिला था और एक N15 का मिला था। तो उन्हें पता चल गया था कि ये जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। ओके, तो उसके बाद हमने कहा है ये जो रेप्लिकेशन है ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल मीन्स जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, इस साइड भी इस साइड भी। तो इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, जो रेप्लिकेशन होने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, DNTPs। तो ये जो DNTPs है उन्होंने एक 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया था, लाइक हॉट फेज एंड वार्म फेज। ओके, तो वार्म फेज पे जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था, फॉर एग्जांपल यहाँ ओपन रीडिंग, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है,
तो वार्म फेज पे उन्होंने जो DNT पीस था ये थोड़ा कम डाला था, ठीक है, तो कम डाला था तो ऐसे ऐसे हुआ था। ओके, तो आफ्टर 5 और 10 मिनट्स, 5 और 10 मिनट्स के बाद उन्होंने जो DNT पीस था उसका कंसंट्रेशन क्या क्या था, बढ़ाया था, बहुत ज़्यादा बढ़ाया था, लाइक दिस। ओके, तो जब उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट्स पे देखा था, तो इसको जब हम उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट्स पे देखा तो उन्हें क्या नजर आया, ऐसे ऐसे नजर आया था, लाइक दिस। ठीक है, तो वार्म फेज पे उन्हें बहुत कम और हॉट फेज पे उन्हें बहुत ज़्यादा मिला था। तब उन्हें पता चल गया था कि दिस रेप्लिकेशन प्रोसेस इज बाय डायरेक्शनल। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ किए थे उन्होंने ये DNTPs को इंसर्ट करने के लिए। और जो नेक्स्ट है हमने क्या बोला था, सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो जो रेप्लिकेशन है वो बिल्कुल एकदम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये क्या है, सेमी डिसकंटिन्यूअस है। फॉर एग्जाम्पल आप हम बताएंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको DNA पॉलीमरेज के बारे में। DNA polymerase is an enzyme which is used for DNA replication। तो DNA polymerase हमेशा पॉलीमराइजेशन करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करते हैं। ठीक है, और जो DNA पॉलीमराइजेशन को हमेशा 3 प्राइम OH की ज़रूरत पड़ते हैं, वो भी फ्री, मतलब इस पे कोई मीथेन या मिथाइल या कोई भी ग्रुप इस पे या फॉस्फेट ग्रुप कुछ भी अटैच नहीं होना चाहिए। और जो DNA है वो क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंड होते हैं, उसको सिंगल स्ट्रैंड ही चाहिए, दोनों स्ट्रैंड को अलग करके अनजिप करके। तो उसके लिए हमें क्या होते हैं, वहाँ और एक एंजाइम होते हैं हेलिकेस। हेलिकेस क्या करते हैं, DNA को मेल्ट करते, और जो हेलिकेस का मेल्ट करना, यहाँ से इसको अनजिप करना, और जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, इट बोथ ऑफ दिस गोज साइमल्टेनियसली। ओके, सो बोथ, और जो दोनों स्ट्रैंड है इन दोनों का रेप्लिकेशन होता है, स्ट्रैंड 1 स्ट्रैंड 2 का दोनों का रेप्लिकेशन भी क्या होता है, बोथ स्ट्रैंड्स भी साइमल्टेनियसली रेप्लिकेट करते हैं। तो दोस्तों लेट्स सी, दिस इज ए DNA मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको अनवाइंड किया हमने, ये सोचा है। ठीक है, 3' 5' 5 प्राइम 3 प्राइम। ओके, तो ये हो गया हमारा रेप्लिकेशन फॉर्म, और इस DNA को हमने क्या किया, अनवाइंड किया। यहाँ क्या है, हेलिकेस है। हेलिकेस क्या करते हैं, अनवाइंड करते हैं, और यहाँ पे एक प्राइमर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 5' 3' का प्राइमर क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइमर फॉर्म हुआ एक, और यहाँ पे भी प्राइमर फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, 3' 5'। तो इसमें 2 स्ट्रैंड बनते हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड बनते हैं। ओके, वन इज लीडिंग स्ट्रैंड, और यहाँ पे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट होता है छोटे छोटे, और फिर प्राइमर आते हैं, फिर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट आते हैं, इसको हम कहते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। ओके, सो जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है, लीडिंग स्ट्रैंड एक्ट एज ए कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, क्योंकि ये कहीं ब्रेक नहीं होता है। वंस इट बाइंड विद द प्राइमर, अगर प्राइमर फॉर्म हुआ तो एक स्ट्रैंड जो हेलिकेस के डायरेक्शन में है वो क्या होते जाएगा, लंबा होते जाएगा, और जो उसका ऑपोजिट वाला स्ट्रैंड है जहाँ पे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स भी आते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड होता है, और ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनते हैं। ये कंटिन्यूअस नहीं होते, बीच बीच में इसका प्राइमर आते हैं, फिर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स पे बाइंड हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन को, दिस इज ए सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूअस भी है और डिसकंटिन्यूअस भी है। सो रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया।